Now, so we were discussing about the MSP. Yes or no? And we have discussed everything about MSP, that what is MSP, the rationale, that why the government provides this MSP, why they have to do it. And this rationale we have understood through stakeholder approach, by finding out 3 stakeholders, writing down the benefits. And then we discussed in detail about that MSP is announced for which crops. Yes or no? Difference between MSP and FRP. I'm pretty sure you must have understood the difference between MSP and FRP. मैं अब आपको एक FRP की एक अच्छी कहानी और बताता हूं. आप लोग ये सोच रहे हो कि देखो FRP is the price which is being paid by the government or by the sugar mills to the sugar owners. Sugar mills. अब sugar mills तो चलो sugar owners को इसीलिए पे करती है so that they can procure it, and after procurement what they do it? Sugar production. Major production is sugar, but उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज इथेनॉल वन. क्लियर? सो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं दैट कैन बी यूज फॉर इथेनॉल, जो अपने बाई प्रोडक्ट लाइक बगासे, मोलासे, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स. अब बात ये आती है कि यार शुगर मिल्स को लगता होगा कि मार्केट में शुगर का प्राइस जो है दैट इज डिक्लाइनिंग. एक टाइम था बीच में जब मार्केट में शुगर प्राइस इज डिक्लाइनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो अब ये सोचो, वी आर सपोज शुगर मिल ओनर्स, वी आर पेइंग हाई प्राइस टू द शुगर केन फार्मर्स, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, तभी तो हम बाय कर रहे हैं. बट व्हेन वी आर सेलिंग शुगर टू द मार्केट वी आर गेटिंग लो प्राइसेस. So low selling prices and high cost price will result into the losses by the sugar mill. And तभी आप देखना काफी सारी शुगर मिल्स जो होती थी लॉसेस में होती थी. अब इन शुगर मिल्स को बचाने आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने अभी तो चलो आप फर्स्ट ईयर में हो, अब नोटिस करना बजट में जनरली द गवर्नमेंट मेक प्रोविजन फॉर शुगर मिल ओनर्स. जनरली द गवर्नमेंट मेक प्रोविजन. Why? Because it is based because of their FRP policy. It is because of their FRP policy that they are bearing losses. अरे मार्केट में अगर प्राइस कम है तो ये लोग यहां पे भी तो प्राइस कम देना चाहिए, बट नहीं, आपने तो फिक्स करके रखा है, एंड दैट टू स्टैट्यूटरी मैंडेटेड. क्लियर? एंड यहां पे आपने सेलिंग प्राइस तो लो है, तो शुगर मिल ओनर्स फेस करते हैं लॉसेस, एंड दैट्स व्हाई दे गेट कंटिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. So whenever you observe, you will see that government provide this much support to the sugar mill owners. तो इसीलिए. See, it's not a state government necessarily; it can be by the central government also. देखो state government क्यों करेगी? Just because to support the sugar mill in their region. So state government भी कर सकती है, but mainly provided by the central government. क्योंकि जो मैं बजट पढ़ते हैं हम लोग बजट में ही देखते हैं ये चीजें. But state government, yes, why not? ठीक है. अब ये भी हमने सब देख लिया था, हमने ये भी देख लिया that MSP is announced for which crops? Clear? खरीफ and rabi और in other terms cereal, pulses, oil seeds. ठीक है, आपको याद रखने हैं. Now lastly, suppose if I ask you critical analysis of MSP, that does providing MSP raises any concern for the, you can say, various stakeholders? So just 1 minute, let me write down the stakeholders again here. It's a simple strategy. We are writing MSP here. Concerns for farmers, concerns for agriculture and environment, basically agriculture, and then you have government. Now you brainstorm कि आपको क्या लगता है ये जो MSP है, ये जो MSP है, what are their concerns, like concerns of MSP with respect to the agriculture, farmer, government? सोचो अपना अपना क्या हो सकते हैं. चलो first point, very good, this is logically. See, MSP is what? It's the burden, or you can say it's a government intervention to procure the crops. Government को क्या जरूरत पड़ रही है apart from meeting the Food Security Act, कि हम लोगों को जो बेसिक फूड सिक्योरिटी में कवर करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाई द गवर्नमेंट शुड प्रोक्योर इट? वही मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, सो गवर्नमेंट को ऐसा तो कुछ है नहीं. सो बेसिकली व्हेन गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग, डोंट यू थिंक इट इज गिविंग अ फाइनेंशियल बर्डन? एंड लेट मी गिव यू वन फैक्ट हियर. दिस प्रोक्योरमेंट इज मोर लाइक एन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट. Then I'll come to your point, that is financial burden.
When I say open-ended procurement means there is no maximum cap as such for cereals. And if there is no maximum cap for cereals, what is going to happen? Farmers can sell their crops mainly to the government, which leads to the procurement by the government more than the required. Again आप समझ लो गवर्नमेंट को क्यों प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ती है. Just let me give you this idea. See, government have enacted an act known as National Food Security Act. सुने हो? Government has enacted an act, National Food Security Act 2013, which aims to provide subsidized food to 75% rural population and 50% urban population. Yes or no? Aims to provide that. Now at a subsidized rate is rice, wheat, coarse cereals at the rate of 3 to 1 per kg. Government has made this promise to the citizens that okay, I'll provide the subsidized food, rice, wheat, cereals, coarse cereals is maize one. Clear? तो अब हम बात करते हैं कि 75% उनको कवर करना है रूरल एंड 50%. अब इसके लिए आपको सीरियल्स प्रोक्योर तो करने पड़ेंगे. यस और नो? यू नीड दैट. सो प्रोक्योरमेंट विल बी हैपनिंग थ्रू FCI. एंड फ्रॉम whom? फ्रॉम द फार्मर्स. और अब जब फार्मर से आप प्रोक्योर करोगे, व्हाट द फार्मर्स विल गेट at the what farmers will get? The MSP. Yes or no? What farmers will get? The MSP. I hope you understand this point. So MSP is the price at which the government procure from the farmers. But why? For two major purposes. One, meeting their commitment, for meeting their needs or meeting the promises made under NFSA. Second, to just maintain a buffer stock so that अगर कोई crisis आ जाए, disaster हो जाए, then this buffer stock can be used. Yes or no? This buffer stock can be used. This is how the government, or this is why the government procure it. But when the government procure it, it is an open-ended procurement. That means there is minimum, इतना तो procurement करना है, minimum norms है, but not maximum. Because of which what happened? The government will have what? Financial burden, which you can say high subsidy. Yes or no? Not only this, can you tell me that this open-ended procurement results into another problem? Wastage. क्यों? Yes, very good. This open-ended procurement also leads to the wastage of food grains. In bracket you can write it down, due to inadequate storage capacity. Inadequate storage capacity. Even पता है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड, मतलब इतना ज्यादा, अगर मैं आपको एक रियल बताऊं कि दिस प्रोक्योरमेंट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज, वॉट एवर द स्टोरेज कैपेसिटी, ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ दैट वी प्रोक्योर इट. तो अगर हमारे पे स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी तो हम फार्म, ये जो प्रोक्योरमेंट है कहां रख देंगे? ओपन एरिया में, सिर्फ शीट लगा देंगे ज्यादा से ज्यादा. Will that not lead to wastage of food grains? Apart from that, हाँ, वो किसी के लिए यूज आता है, that is by the rats, consumption for rats. तो आप ये सोचो, गवर्नमेंट, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये गवर्नमेंट रैट्स को खिला सकती है, लेकिन on the other hand, why not it release it in the market and give it to the poor people or the hunger people? Because अब देखो कितना irony और ये paradox है. On one hand, we are the largest producer of cereals, rank लिखवाई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में फर्स्ट, but on the other hand, check out our hunger index, global hunger index ranking. 24 crore people still. हाँ, मतलब they are malnourished. हाँ,
मतलब नंबर छोड़ो, मतलब पॉइंट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग देखो हमारी इवन बिहाइंड अवर नेबर्स. सो अब गवर्नमेंट तो चलो जो भी बोल देखी, चलो दिस रैंकिंग वी डोंट डे वॉट एवर वी एक्सेप्ट इट एंड फाइन, बट यू सी इजंट इट दिस आयरनी that on one side we are the world's largest cereal producer and our stock is getting wasted, consumed by the rats also, but on the other hand we are also the world largest malnourished people. बस malnourished में क्या हो जाता है, दो तरीके के लोग हो जाते हैं, एक undernourished और overnourished टाइप से obesity, but still this thing happen. ठीक है, तो ओवर प्रोक्योरमेंट से that leads to another problem. और सोचो क्या हो सकती है, बताना आप ही को है, कम से कम 5-6 पॉइंट, then I'll complete this chart. सॉरी, हाँ कैसे? वेरी गुड, दिस इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. MSP, I told you again that while MSP is announced for 22 crops, it is actually in practical for mainly for you can say cereal crops or sugarcane. While it is announced for 22 and one that is FRP, so 23 crops, but it is mainly implemented for these crops. That is cereals and the sugarcane. Now, when it is implemented mainly for these, don't you think farmer would be encouraged the cultivation of these crops? So, will it not lead to distort the cropping pattern? Yes or no? It will distort the cropping pattern towards cereals. And when you distort the cropping pattern towards cereals, another problem that automatically arise, again which we have covered, cereals produce कर रहे हैं, supply cereals का है, लेकिन demand तो proteins की है, pulses की है, तो इससे cropping pattern distort करने के ही कुछ impact है अपने आप. First, we are not looking for nutritional security. Why? आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, देखो सिर्फ आपको ना ये पॉइंट पता होना था, इससे आप खुद कैसे निकालोगे. और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज इट हैज हैपेंड आल्सो दैट पल्स का जो क्रॉपिंग पैटर्न है दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय द सीरियल्स बिकॉज फार्मर्स आर लाइक लेट्स कल्टिवेट सीरियल्स, वी नीड मनी. सेकेंड बताओ, अरे आप समझो, राइस, वाटर, शुगर केन जिसमें है, व्हाट आर दीज? बेसिकली वी आर कल्टिवेटिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड दीज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लीड्स टू अगेन डिक्लाइन ऑफ. यस, पॉइंट आप सोचो, मैं आपको बता रहा हूं वही है, बस घुमा के कैसे लिखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा इन्फ्लेशन पॉइंट तो लिखना ही भूल गए. इन्फ्लेशन स्पेशली इन ब्रैकेट लिख सकते हो, प्रोटीन इन्फ्लेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कुछ फार्मर साइड से प्रॉब्लम बताऊं, फार्मर साइड से देयर वाज अ कमिटी नोन एज शांता कुमार कमिटी. इट सेड दैट वी टॉक अबाउट दिस MSP. पता है MSP कितने एक्चुअल जो फार्मर्स हैं, कितने परसेंट ऑफ फार्मर्स यूज करते हैं? ओनली 6%. So only 6% of the farmers availed the benefits of MSP. In bracket लिख देना शांता कुमार कमिटी. तो ऐसा नहीं है कि हमारा फैक्ट है, इट्स अ शांता कुमार कमिटी फैक्ट. एंड अब देखो, चलो ये बात क्लियर है कि कम फार्मर्स यूज करते, बट द अनदर डिस्टिंग्विशिंग एस्पेक्ट इज दिस MSP procurement is concentrated from certain region only, especially northwestern India. So that means there's another issue is regional disparities in procurement. Regional disparities in procurement. देखो ये ना अगेन एक कॉम्प्लेक्स अलग से इशू है. आपको क्या लगता है कि स्टैट्यूटरी मैंडेटेड नहीं होना क्या एक डिसएडवांटेज है? ये आपकी सोच के ऊपर है. मतलब मैं यहां पे नहीं लिखता क्योंकि अपने आप में इशू है, पहली चीज. सेकंड, गवर्नमेंट को अगर स्टैट्यूटरी मैंडेटेड करना होता ना तो वो फार्म प्रोटेस्ट को, फार्मर्स को अपील कर देती, उसी टाइम पे पंजाब का इलेक्शन भी जीत जाती. लेकिन गवर्नमेंट को नहीं करना था. एंड लेट मी टेल यू, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ऑल्सो इट इज नॉट अ गुड रैशनल है.
आप ये देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद हमारी जो फूड सब्सिडी है वो कितनी ज्यादा हो गई है. एंड द पाथ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डीरेगुलेशन, नॉट टूवर्ड्स रेगुलेशन. द पाथ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मार्केट, नॉट टूवर्ड्स अगेन टू मच ऑफ स्टेट. तो इसीलिए एमएसपी लाना अगेन स्टैट्यूटरी लिखना, ये आपको लग रहा है डिसएडवांटेज है, बट इट इज एक्चुअली नॉट. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अगर आता है कि स्टैट्यूटरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूं उसके पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, आपको बता दूंगा अभी क्या रीजंस, मतलब क्या होगा. ठीक है, तो ये अपने हैं. यस, वेरी गुड. दिस यहां पे यू कैन से दिस towards cereals leads to another problem known as monoculture, and this monoculture affects the, मतलब मोनोकल्चर ब्रैकेट में लिख देना, नहीं ब्रैकेट में लिखना नो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ताकि दोनों वर्ड में से आपको कुछ भी लिखना हो. ये सब कीवर्ड्स ही होते हैं. एंड दैट अफेक्ट्स, यस, हु वाज सेइंग सॉइल हेल्थ, दैट अफेक्ट्स द सॉइल हेल्थ एंड अल्टीमेटली डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी. Ultimately declining productivity. Clear? And farmers पे हमने देख ही लिया, lastly only 6%. So poor awareness भी लिख सकते हो, एक पॉइंट और, poor awareness. So these are some of the challenges, or you can say critical analysis of the WTO concerns. अभी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. यह बता दूं अभी WTO की कहानी यहां पे, तो मेरे को ना कम से कम हमारा तो सब्सिडीज एंड में मेरे को याद दिलाना, जो मैं सब्सिडीज जब पढ़ाऊंगा ना तब मेरे को बताना मैं WTO की कहानी, जो क्यों WTO में ना क्यों हम रिलीज नहीं कर पा रही, व्हाई द गवर्नमेंट इज अनेबल टू रिलीज दिस. बोलना तो बहुत आसान है दैट सर यू हैव सेड दैट गवर्नमेंट रैट्स को खिलाना चाह रही है, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम द WTO एक्चुअली. दे कांट रिलीज द फूड ग्रेन्स इन द मार्केट, एंड आई विल टेल यू व्हाई. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द सब्सिडीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, जस्ट रिमाइंड मी एट दैट टाइम, वहां पे ज्यादा से अच्छा लिंक हो पाएगा. हाँ, इस पे एक और पॉइंट ये लिख सकते हो, गुड. जैसे इफ यू सी एमएसपी इज डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स सीरियल्स, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई, बट देन द अदर क्रॉप्स दे गॉट अफेक्टेड सच एज पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, because of which we have to import them. So अब यहां पे जैसे इसके बाद ही लिख सकते हो, क्योंकि हमारा मोनोकल्चर हो गया, that is it goes against the principle of crop diversification. The next point is you can say not achieved self-sufficiency, not achieved self-sufficiency, especially in pulses and oil seeds, in pulses and oil seeds. ठीक है, एग्रीकल्चर का ही पॉइंट है. सो आप करीबन आई थिंक मेरे हिसाब से 10-11 पॉइंट तो हो ही गए होंगे. सो दिस इज हाउ लाइक यू जनरेट द पॉइंट्स. आपको भले 10-11 भी नहीं लिखने, आप अगर 7 भी लिख लेते हो ना, 6-7, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. लेकिन एक बात निकली थी, दैट इज अगर मैं पूछूं आपसे दैट वेदर डू यू थिंक द एमएसपी शुड बी गिवन एज स्टैट्यूटरी बेसिस, तो आपको देखो जब ये क्वेश्चन होता है should the MSP given a statutory basis, तो एक सेट ऑफ पॉइंट्स आप लिखोगे yes, है ना, एंड दूसरी सेट ऑफ पॉइंट्स आप लिखोगे no. तो अगर आप yes की बात करते हो, yes, that means आप क्या करना चाह रहे हो कि MSP के कुछ बेनिफिट्स होंगे, yes or no, और स्टैट्यूटरी नहीं होने की वजह से MSP has not reached to the farmers. सो अब आपको क्या लिखना, अगर मैं यस बोलूंगा तो क्या आपको बेनिफिट्स ऑफ एमएसपी नहीं लिख सकते हो? वी हैव डिस्कस दिस, रैशनल है और क्या है, प्लस यू कैन राइट डाउन दैट विदाउट स्टैट्यूटरी वी हैव सीन दैट इट हैज नॉट अफेक्टेड द फार्मर्स, इट हैज ओनली प्रोवाइडेड द एमएसपी टू 6% ऑफ द फार्मर्स. लेकिन जब आप नो बोलोगे, नहीं नहीं एमएसपी से डिसएडवांटेज भी है, कंसर्न्स भी हैं, यू हाईलाइट दीज कंसर्न्स, you highlight these concerns, environmental damage also, you highlight this cropping pattern. So अपने वही points है, it's not like that points is going to be different. सिर्फ तक ऐड क्या करना होता है, that if there is any committee which have been set up with respect to recommending the statutory, सिर्फ आपको उसका नाम बस ऐड करना होता है, अदरवाइज पॉइंट्स तो यही आएंगे.
कुछ ऐसा नहीं है कि वो नई कोई चीज है ना कि आपको उसके लिए 10 एडिटोरियल या 12 एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत है। सिंपल सा लॉजिक है ना, स्टैट्यूटरी होना चाहिए। यस यस, दैट मींस आप यस तभी बोलोगे ना, जस्टिफाई कैसे करोगे? व्हेन यू से दैट एमएसपी प्रोवाइड्स बेनिफिट, जो हमने रैशनल में वही तो पढ़ा है, एवरीवन इज बेनिफिटिंग, बट नो भी बताओगे क्यों? क्योंकि उसके कंसर्न्स है। तो मेंस इसीलिए अगर इजी होता है इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, कि एक टॉपिक का अगर आपको तैयार है एक बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे एमएसपी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका रैशनल या बेनिफिट्स, उसके देन चैलेंजेस एंड देन सम रिफॉर्म मेजर्स, इस तरीके से आपका कोई भी एक इश्यू तैयार हो जाता है, योर मेंस इज रेडी। सिर्फ उसको फिर रट के आपको याद करना है, रिवाइज 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 एंड देन एक्सप्रेस इट इन योर शीट। व्हाट इज द इशू? नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना अभी, मतलब स्टोरेज बनाने में भी तो टाइम लगता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो स्टोरेज की थोड़ी सी डिटेल्ड कहानी है, बट फिर भी मैं बताता हूं आपको। देखो स्टोरेज एक तो होता है कि आप खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, बट अगेन बिल्डिंग योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू टेक टाइम एंड देन इट्स कॉस्टलियर ऑल्सो, विच द गवर्नमेंट इज डूइंग इट स्लोली। इट्स नॉट दे आर नॉट डूइंग, द स्टोरेज कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड, but our procurement has increased at a faster rate. And let me tell you why. You know the reason also. This procurement had to increase because of this particular act. So our procurement increased at a faster rate, but our storage was increasing at a linear pace, और उसको आप exponentially बोल सकते हो, creating gaps. So then government thought कि why it's like we are only building the storage, why can't we partner with the private people? Why can't we partner with the private people? That's why the government partner with the private people. और आप लोगों ने सुनी होगी ये कहानी कि आप लोगों के आसपास में ना कई के वेयर हाउसेस बने हुए हैं, जो सेंट्रल रीजन नहीं, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं, वेयर हाउसेस टाइप की, जहां पे आपका सपोज रख दिया है। और आप लोगों ने कभी सुना होगा कि यार वेयर हाउस का ना बिजनेस करते हैं, वहां पे ना सीधा गवर्नमेंट के साथ टाई अप होता है, यू गेट अ बैंक लोन ऑफ 80%, लैंड आपको लेनी है, लैंड में आपको इतना इन्वेस्ट करना है, अगेन यू कैन गेट अ लोन फॉर दैट ऑल्सो। आपको वेयर हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं, एंड गवर्नमेंट विल गिव यू द फिक्स सैलरी ऑन दिस, फिक्स्ड रेंट पे। तो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को आपने सीधा लीज पे दे दी, विच द गवर्नमेंट इज पेइंग यू द रेंट। ये वेयर हाउसेस का बिजनेस दैट इज बीइंग डन मैनी बाय मैनी पीपल, मतलब इवन बाय माय नोन ऑल्सो, माय रिलेटिव्स ऑल्सो, दे डू इट एंड दे पुट इट। और स्पेशली देखो हम तो एमपी से हैं, एमपी में होना ही होना है, दिस वेयर हाउस मार्केट इज वेरी बिग, बिकॉज वॉट एवर यू सी, आपको कहीं से भी अगर निकालना है जो चीजों को, बेसिकली कोई भी गुड्स को, यू नीड टू हैव अ स्टोरेज इन एमपी, मतलब बेसिकली सेंटर। तो वहां से आपको ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न साइड, यू कैन गेट इट देयर। अब आपने ये भी कहानी सुनी होगी कि सबसे ज्यादा अगर वेयर हाउसेस हैं तो अडानी के, अगर आपने ये भी सुना होगा तो। So like this, the government is not like they're restricted to only building their own storage. They are trying, but the procurement increased at much faster rate that still they are not able to bridge that part. ठीक है, तो एक टाइम पे आई थिंक मैं बताऊंगा, आज से अगर आप 5-7 साल पहले बोलते ना, दिस बिजनेस वॉज वेरी बूमिंग बिजनेस, वेयर हाउसिंग थिंग। अब तो ठीक है, मैनी पीपल हैव डन इट, बट एट दैट टाइम हु हैव डन इट, दे हैव लाइक अर्नड अ लॉट, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, बैंक लोन भी लो 80% तक, आपको लैंड में भी इतनी सपोर्ट है, कोई आपको ज्यादा टेंशन की कुछ बात नहीं, और फिक्स्ड इनकम आ रही है। बोलो। हमारा यस प्रोक्योरमेंट मोर ऑफ सेंट्रलाइज्ड ही होता है, बट वी हैव स्टार्टेड अगेन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट टू सर्टेन एक्सटेंट, बट होता हमारा मेजरली सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट है, बट होना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी एमएसपी की कहानी। नेक्स्ट, अब मानो व्हाट अबाउट दोज 94% ऑफ फार्मर्स हु आर नॉट एबल टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर एमएसपी, हु आर नॉट एबल टू सेल इट टू द गवर्नमेंट, नाउ दे हैव द प्रोड्यूस, वेयर शुड दे सेल देयर प्रोड्यूस? टू द मार्केट, ठीक है। सो दे शुड सेल इट टू द मार्केट एंड दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। जस्ट अंडरस्टैंड वन
and you will get to know the issues by yourself, that what are the issues in agricultural marketing. See, this is like, tell me first of all, agriculture market, it come under the state list or the center list? State list. Chalo. So you know that agriculture marketing is a state subject. Is a state subject. That means various states will be making their own laws with respect to agriculture marketing. They will have their own provisions with respect to agriculture marketing. Yes or no? So thereby, this is India's total market of India. Can I divide this Indian market into various state markets? Yes or no? And reason I have given here is agriculture marketing fall under the state list, which resulted in, can I say fragmentation of national market or fragmentation of market? Can I say that? If not now, don't worry, definitely will say it when I tell you the next point. This agriculture marketing fall under the state list, which result into states enacting their own agricultural laws. States enacting their own agricultural marketing laws. States enacting their own agricultural marketing laws. So thereby they would be differing, कुछ तो differ हो रहा होगा, but the core principle behind or in their acts were same, and these acts are popularly known as APMC Act. These acts are popularly known as APMC Act, which broadly comprises of two principles. Now what is that? APMC is Agricultural Produce Marketing Committee. Agricultural Produce Marketing Committee. So there are two major principles. First, each state let me take one state. Suppose मैं ये वाला स्टेट लेता हूं, स्टेट सी. ठीक है, दिस इज अ स्टेट सी. This is a state C. This is India. Try to understand this problem. Now all these various states, they have enacted their own laws. Now these laws, if I talk about, comprise of two major principles. One, they have divided the state into various notified areas. Each state have divided their state in various notified areas, which we commonly call it as mandi. So basically each state have divided into notified areas known as mandi, which is regulated by, or mandi or also known as, you can say, APMC. Mandi or also known as APMC. यहां पे जरूर लिखना ये स्टेट की बात कर रहे हैं, ये सिंगल स्टेट है, ये इंडिया है. तो आप देखो मार्केट हमारी कैसे फ्रेगमेंट होती जा रही है. इंडिया से पहले स्टेट मार्केट हुई बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड देन व्हाट एपीएमसी एक्ट डिड. एपीएमसी एक्ट ने ये कहा, पहला प्रोविजन, दैट ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन कॉल्ड मंडी, क्लियर, और एपीएमसी.
The second principle says that the farmers belonging to this notified area can sell their only produce in the mandi itself, and the buyers from this notified area can can buy the produce only from this mandi, which means, sir, you are saying they cannot engage in direct buying and selling? Yes, they cannot engage. This is the second principle. What is the meaning of this? Why this has been done? I'll talk about it. But understand two principles. One is, and these principles were common in almost all the APMC acts enacted by various state government. छोटे छोटे प्रोविजन, फीस, कोई चार्जेस, वो सब अलग है, लेकिन ये कॉमन प्रिंसिपल्स थे. अब हर एक स्टेट में बेसिकली एक ऐसा मंडी बना दिया, जैसे हमारे दिल्ली की होगी आजादपुर मंडी, क्लियर. तो इस एक एरिया की बेसिकली एक मंडी बना दी, वेयर द फार्मर्स दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू दैट मंडी, वेयर द बायर्स लाइक जो आप देखते हो स्ट्रीट वेंडर्स में जो आपके वो हैं, वो बोलते नहीं है कि हमें सुबह मंडी में जाना पड़ता है 4 बजे, वहां से लेके आते हैं आप लोग के लिए, है ना. सो दे हैव टू बाय द प्रोड्यूस डायरेक्टली, दे कैन नॉट एंगेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द, you can say, seller. Now why this provision? अब आपको ये कहानी भी मैं बता चुका हूं. Imagine a period of just before independence or just at the time of independence. Can't I say that that era was still, or that period still consisted of a feudal system where the caste thing was still dominant, money lender was dominating, landlords was dominating, influencing it. And they were, I told you, they were not just only providing money, they were also the major crop buyer of the region. Yes or no? They were the crop buyer, which influences, or you can say not influence, a chota word hai, pressurizes the farmer to sell their produce to me at a reduced rate than the market price. होता था नहीं होता था, ये कहानी तो मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस ही बताई, बट इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वाज अ सिनेरियो स्टिल, क्योंकि कास्ट सिस्टम वाज स्टिल एंट्रेंच्ड. वहां पे जो क्लास थी, भैया लैंडलॉर्ड्स ये है, दे वील्ड पावर, सो यूजिंग देयर पावर दे वर लाइक एबल टू डू दैट. सो देयर बाय गवर्नमेंट थॉट, व्हाई नॉट क्रिएट वन मार्केट वेयर वी से दैट फार्मर्स विल सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू नोटिफाइड एरियाज. There will be traders, जिसको आप कॉमनली बोलते हो अरातियाज. अरातियाज तो वर्ड सुना होगा वैसे मूवीज में भी. Which are traders. So this market, try to understand, this market will have traders. So as a farmer, if I go to the market, there will be many traders who will bid for my produce. They're like, okay, I'll buy at 10 rupees per kg. Another is, no, I'll buy 20 per kg. So when there is so many traders who are bidding for my produce, tell me, will I be able to get higher income or not? Yes. And I was very happy. I was able to sell that to the trader. Now the trader will be selling that produce to the actual buyer. Again, he will also take his profit. तो बेसिकली एक इकोसिस्टम बना दिया ना एक मार्केट का, जिसमें फार्मर को कुछ नहीं, बेसिक फीस देनी है, अपने फेस मार्केट चार्जेस देने हैं, कुछ कमीशंस देनी है, इस तरीके से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? लेकिन ये देखो, ये बताओ, इसमें ये कोई डिफॉल्ट दिख रही है आपको अभी तक? चीज तो बढ़िया लग रही है ना, कि एपीएमसी एक्ट वाज इनेक्टेड विद अ नोबल इंटेंशन. हाउ इट वाज एबल टू करेक्ट द अर्लियर सिचुएशन. तो इसमें अब गड़बड़ी होना कहां से स्टार्ट होती है? सॉरी, नहीं, अब देखो गड़बड़ी होती कैसे है. पहले आपने इंटेंशन तो समझ लिया बढ़िया तरीके से, प्रिंसिपल समझ लिए, प्रिंसिपल्स लिख लेना अपने हिसाब से, या लिखना है लिख लो. मैं आपको गड़बड़ी बताता हूं, पहले आप लिख लेते हैं थोड़ा सा. और डायग्राम भी ऐसे ही बनाना, एक इंडिया जिसमें मार्केट लिख देना स्टेट 1 S1 S2 S3, फिर उस एक स्टेट को चूज करना और यहां पे लिख देना M1 M2 M3, दैट इज मंडी. क्लियर? सो राइट इट डाउन. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्लूड्स all the operations
includes all the operations involved in the movement of farm produce, involved in the movement of farm produce from the producer to the ultimate consumer, from the producer to the ultimate consumer. Next point, India's agriculture markets are regulated by the state, as the agricultural marketing falls in the state list. Next point, states enacted their own APMC acts. States established the agriculture markets. State established the agricultural market, popularly known as the mandis, through the enactment of APMC acts, Act. Next point, the sale of agricultural commodities can occur. The sale of agricultural commodities can occur only in the mandis through auction. Next point, the sale process in mandis is regulated through commission agents, who mediate between the farmers and traders. Last point, under the APMC legislation, a farmer belonging to the notified area can sell their produce only to the mandi, notified area, mandi, and the buyer can buy the produce only from the mandi. Chalo, now let us try. नहीं अभी ऑक्शन में से फ्लॉ क्यों है वैसे बताओ। हाँ हाँ तो और क्यों ऑप्शन, मतलब ऐसा क्यों होता है, कम प्राइसेस क्यों होंगे, उन्होंने क्यों प्राइस ऐसे लगाया? नहीं नहीं कमीशन एजेंट्स तो हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सपोज कमीशन एजेंट्स तो चलो एक नेक्सेस हो गया,
दूसरा, फार्मर ने बोला मैं नहीं दूंगा, तो क्या ऐसा तीसरा ट्रेडर बोल सकता है कि कमीशन को कि भैया नहीं नहीं चलो मैं देता हूं? अरे नहीं, फार्मर के पास मैं बोला हूं कि एक ट्रेडर को नहीं बेचा तो दूसरे ट्रेडर को दे दूंगा। हाँ, क्या बोले? इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं भैया कार्टेलाइजेशन। अब देखो प्रॉब्लम, बिल्कुल तुम प्रॉब्लम सही जा रहे हो। अब ये प्रोसेस तो दे दो। हाँ, मिली जुली टाइप की सरकार टाइप से ही ना। हाँ, तो अब कहानी यहीं से मेन अब स्टार्ट होती है कि इसको इतना नोबल इंटेंशन एक्ट, इट वॉज अ नोबल इंटेंशन एक्ट, व्हाट चैलेंजेस दे हैव फेस्ड। आइडिया क्या था कि यार दे विल सेल इट एट ऑक्शन, लाइक दे विल सेल द प्रोड्यूस, देयर विल बी सो मेनी ट्रेडर्स बिडिंग फॉर देयर प्रोड्यूस, वो मर रहे होंगे कि यार हमारा प्रोड्यूस हमें दे दो, हमें दे दो। बट कहानी हो रही थी उल्टी। और क्यों? सबसे पहले आपने एक फार्मर जो यहां पर है और जो बायर यहां पर है, उस मार्केट को पहले ही आपने तोड़ दिया, कंप्राइजिंग टू द स्टेट ओनली। लेकिन वो तो चलो आपने तोड़ा ही तोड़ा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद जब स्टेट की कहानी आती है तो फार्मर अगर इस नोटिफाइड एरिया से बिलोंग करता है तो दे विल बी एबल टू सेल ओनली टू दिस मंडी। दिस वी कॉल इट एज फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। द फर्स्ट पॉइंट, fragmentation of market, which don't you think reduces the competitiveness? Yes or no? Reduces the competitiveness. Now he will be only, उसके जो buyers होंगे वो सिर्फ उसी रीजन में होंगे, नहीं होंगे? कोई बात नहीं, ठीक है। फार्मर्स को फिर भी लगता है कि चलो ठीक है, मैं नाउ आई एम मेकिंग अ मंडी M3, दिस इज अ मंडी। हाँ, सो फार्मर को फिर भी लगता है कि फाइन, there will be number of traders, there will be number of traders who will be buying the produce and they will bid higher. But then the second condition that has been put is the each mandi or the trader, suppose if I say a trader to operate in different mandis have to get a different license. The second requirement, tell me, if I say separate license of trader for each mandi, if you want to operate in different mandis, you need to get separate license. तो आप मुझे बताओ, ट्रेडर्स जो है जो सोचते हैं कि यार मैं चल मल्टीपल मंडीज में काम कर पाऊं, बट व्हेन दे गेट अ रिक्वायरमेंट कि यू हैव टू गेट अ सेपरेट लाइसेंस, will they be encouraged to operate in multiple mandis or single mandis? Single mandis। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडर ढीठ होते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं हम लाइसेंस लेंगे। तो गवर्नमेंट ने थर्ड रिक्वायरमेंट क्या रख दी? फिजिकल पोजीशन ऑफ शॉप। ये देखो रिफॉर्म्स, आपको ये प्रॉब्लम जब पता होगी ना तब आपको समझ में आएगा कि ई-नैम क्या रिफॉर्म्स लेकर आए। फिजिकल पोजीशन ऑफ शॉप्स। अब जब फिजिकल पोजीशन ऑफ अ शॉप इज अ रिक्वायरमेंट टू गेट अ लाइसेंस। अब आप चाह तो रहे थे मल्टीपल मंडीज में ऑपरेट करना, बट एक फिजिकल शॉप लेना तो बड़ी बात है। हर मंडी में क्या भैया 1.5-2 करोड़ खर्च करके एक शॉप रखो? विल यू बी एबल टू डू दैट? डिफिकल्ट। डोंट यू थिंक अगेन दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन अ सिंगल मार्केट? That will reduce the number of traders, and when that reduce the number of traders, मिली जुल्ला भैया जो भी है, the cartelization, the cartel you form, is it easy to make or difficult to make? cartel आपने देख ही लिया होगा, मेट्रो के बाहर देख लो, अगर भैया कुछ ऑटोज हैं 6-7 तब तो कार्टेल इजी है, लेकिन अगर ये ऑटो पूरा वाजीराम तक आपके पास है तब आपके पास क्या दिक्कत होती है? तब वो बोलेंगे चल ठीक है मैं ले चलता हूं। जब कम लोग होते हैं तो कार्टेल इज इजी और सब लोग वही प्राइस बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं है डिफरेंट प्राइस बोलेगा, है ना भैया फिक्स कर दिया। अरे मीटर से चल जाओगे तो अभी आपको 70 रुपए में नहीं पहुंचोगे। ये चीज मेरे को मुंबई में बहुत बढ़िया लगती है। मतलब आई वाज लाइक कि मैं बैठा और बस मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं थी कि चल रहे हैं बस ठीक है। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहां पे तो पहले 5 मिनट तो उसी में निकल जाते हैं कई बार, ठीक है। और अच्छी बात क्या है ना कि ऑटो का एक अच्छा मोड, मतलब फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है।
मतलब इट लाइक रेदर देन कैप्स है ना, फास्ट मोड होता है थोड़ा, ठीक है। सो अब इसकी कहानी में फिजिकल पोजीशन ऑफ शॉप्स तो हो गया अपना, जिसकी वजह से ट्रेडर्स हो गए लेस। अब जब ट्रेडर्स हो गए कम, विल दिस ट्रेडर्स नाउ फॉर्म अ कार्टेल? देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कार्टेलाइजेशन, एंड व्हेन दे फॉर्म अ कार्टेल, विल द प्राइस दे ऑक्शन, वो बोलेंगे कोई बात नहीं, तीनों ने बोल दिया कि भैया मैक्स प्राइस हम यही देंगे। अब तो मजबूरी किसकी हो गई? फार्मर की। फार्मर ये सोच के आ रहा था अपने बढ़िया फार्म से लेके कि लोग मर रहे होंगे मेरे प्रोड्यूस के लिए, लेकिन एंड में सिचुएशन क्या हुई? मैं मर रहा हूं कि मेरा सामान बेचो बस, तुम लो मेरा और निकलो, मैं छोड़ो मेरे को। सिचुएशन कितनी उल्टी हो गई। एंड दिस कार्टेलाइजेशन लीड्स टू अनदर इशू नोन एज ओपेक प्राइस डिस्कवरी। It's not a transparent price discovery, it's a opaque price discovery. Because this price is set by them according to their cartel, like according to what they want. Yes or no? Apart from that, कई फार्मर्स भी, ऐसा नहीं फार्मर्स भी हार मानते, फार्मर्स कहते हैं मैं नहीं बेचूंगा। तो फार्मर्स प्रोड्यूस रखे कहां? फार्मर्स के पास फिर दो इशू आते हैं। कई फार्मर्स होते हैं ना बिल्कुल एकदम रिजिड अपने प्रिंसिपल, भैया मैं इससे कम बेचूंगा ही नहीं। तो ट्रेडर्स बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपने आप आओगे 2 दिन 3 दिन बाद 5 दिन बाद। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विच यू आर पेइंग ह्यूज और हाई एंड मल्टीपल levies and charges, high multiple and levies and charges, जिसमें कमीशन फी, कमीशन एजेंट को कमीशन फी दे रहे हो, मार्केट को बिल्ड करने के लिए मार्केट फी दे रहे हो, मार्केट चार्जेस दे रहे हो, एंड अदर टैक्सेस भी दे रहे हो। तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि कोई बात नहीं, तुम भी गिरोगे, आई विल स्टोर माई प्रोड्यूस। फार्मर्स लाइक आई विल स्टोर माई प्रोड्यूस, मैं इतना सारा मनी पे कर रहा हूं, मार्केट अच्छी तो देगी मेरे को, फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करेगी। But it has been found out the poor storage infrastructure, along with cold storage infrastructure, absence of cold storage infrastructure. अब आप सोचो फार्मर्स वाला कि अब क्या करूं मैं, मेरे पे पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात मैं तो टमाटो लेकर आया हूं जो पेरिशेबल प्रोड्यूस है, विच कैन बी डन। अगर मैं जितना ज्यादा रुकता गया इस पेरिशेबल प्रोड्यूस के लिए, इसकी वैल्यू और डिक्लाइन होती जा रही है। सो कंबाइन दिस विद द पेरिशेबल क्रॉप्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हु इज गोइंग टू सरेंडर फर्स्ट, द ट्रेडर्स और द फार्मर्स? फार्मर्स। एंड दिस वी कॉल इट एज डिस्ट्रेस सेल। This is another problem. This we call it as distress sale. They don't like to do it, but just they have done it because they know that my crop will perish, which will result in ultimately low value. So it's better that I have to like sell it right now. कई लोग इसीलिए सेल करते हैं पेरिशेबल होने की वजह से, बट कई लोग और भी दूसरे वजह से सेल करते हैं। 9th इज ये जो मंडीज है ना, जैसे हमने स्टेट को इतना इजीली डिवाइड कर दिया यूनिफॉर्मली, मैंने ना, इट्स नॉट लाइक दैट। सम मंडीज लाइक यू कैन से दे आर कवरिंग ह्यूज एरियाज, मतलब सम मंडीज लाइक दे हैव अ स्मॉल एरिया, तो एक फार्मर को 3 या 4 घंटे में पहुंच जाता है। बट समटाइम्स द मंडी कवर अ ह्यूज एरिया। ह्यूज एरिया आप मानो 11,600 स्क्वायर किलोमीटर का भी एरिया है। दैट मीन्स फार्मर हैज टू ट्रेवल अ लॉट टू रीच टू द मंडी इटसेल्फ, एंड व्हेन दे हैव टू रीच अ लॉट, दैट मीन्स जिसमें 10 घंटे 20 घंटे भी कई बार लग जाते हैं। फार्मर्स को क्या लगता है यार कि जल्दी में चलो बेच के लेट अस गो होम। दिस पॉइंट इज नोन एज इनएडिक्वेट मंडीज। इनएडिक्वेट मंडीज, where the farmers have to travel a lot to reach to the mandi. तो इसीलिए कई बार नहीं होता कि चलो जल्दी से, कई बार ना आप लोग भी सपोज यहां पे तो अभी आपने सब सेटअप बना दिए, लेकिन many of you might have been like come to Delhi for 2-3 days to get a survey of the institutes and other thing. ठीक है कि भैया सर्वे
लेते हैं, कहां रुकना है, एंड देन यू हैव टू गो बैक. तो जो दूर से आते होंगे या कई बार को लगता होगा चलो यार जल्दी देख के निकलते हैं, देन वी हैव टू कम बैक. So this is also among the, like you can say, farmers' mind, because उनके farming कौन करेगा if they are here in the market. Apart from that, they need to sell it because they need immediate payment, immediate cash flow, which can be used to purchase the inputs of the next season. अगर cash flow नहीं मिला, again that will lead to delayed application से reduced productivity. So सब कंसर्न्स तो बेसिकली सरेंडर फार्मर को करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा. That's why the farmer engage in distress sale. Yes. देखो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की कहानी भी बताता हूं, रियलिटी में होता क्या है. एक्चुअल में स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स दे डोंट गो टू द मार्केट डायरेक्टली, ऑनेस्टली. वो अपने से लार्ज फार्मर को अपने ही विलेज पे बेच देते हैं. हाँ, तो अपने से ही बड़े फार्मर को बेच के कि आप हमारा बेच देना और हम अपना ये प्राइस दे देना. रियलिटी में तो देखो ये प्रैक्टिस होती है. बट इवन उसके अलावा भी जो भी फार्मर आ रहे हैं, तो यार जिसकी जो बड़े, जिसका पोस्ट टोमेटो का बहुत कुछ भी है, उसको तो बेचना पड़ रहा है ना इतने प्राइस पे. या जिसको घर जाना है, जिसको कैश फ्लो चाहिए, तो ये सब चीजें, ये हमारे, इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. लिमिटेशंस, आपकी पुअर कॉम्पिटिटिवनेस, फ्रेगमेंटेड मार्केट, पुअर कॉम्पिटिटिवनेस, ओपेक प्राइस डिस्कवरी, मतलब ये तो फोर्सफुल हो गया ना. डिलेड पेमेंट्स, पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब तो इश्यूज है मार्केटिंग के, जो आपका हर 3 साल में यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, सेम पॉइंट्स है, नथिंग न्यू एज सच. न्यू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, हाउ इनैम हैज रिस्पॉन्डेड टू दिस. तो ये आप चैलेंजेस लिख लो, या जैसे अपन ने पहला, मैंने आपको बताते जा रहा हूं कि कौन कौन सा फ्रेगमेंटेशन वाला मार्केट लिख दिया, मार्केट फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. इसी के बाद हमने पुअर कॉम्पिटिटिवनेस भी लिख दिया था, पुअर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मार्केट. थर्ड, एंट्री बैरियर्स. बेसिकली ये जो हमने लाइनें लिखी, सेपरेट लाइसेंस एंड फिजिकल पोजीशन, इसको आप लिख सकते हो एक ब्रॉड पॉइंट को, restrictive entry barriers. Then the next point, cartelization, which we have discussed. Clear? Opaque price discovery. ठीक है. Then we have also discussed the high market fees and charges. इसको ब्रैकेट में लिख लो, almost about 15% of the sales produce. Almost about 15% of the sales produce. Next, marketing infrastructure में ब्रैकेट में लिख दो कुछ फैक्ट. Cold storage unit exist in less than 1/10 of the market. Less than 1/10 of the market, and grading facilities in 1/3 of the market. Grading, GRADING, grading facilities in 1/3 of the market. एक और पॉइंट लिखना, this lack of storage facility results into almost 15 to 30% of wastage of, result into almost 15 to 30% of wastage of agricultural produce. Clear? Then we have discussed about the distress sale. एक पॉइंट और लिख लेना, inadequate number of मंडीज में, फैक्ट लिख देना ब्रैकेट में. There were only 6630 mandis in 2019. 6630 mandis in 2019. 6630 mandis in 2019 with an average area served
with an average area served of 463 square kilometer, of 463 square kilometer. Next point, इसी में सॉरी ब्रैकेट में, there is huge variation in the density of regulated market, varying from 118 square kilometer in Punjab, 118 square kilometer in Punjab to approximately 11,000 square kilometer in Meghalaya, to approximately 11,000 square kilometer in Meghalaya. Ideal, full stop, ideal area to be served by the mandi, ideal area to be served by the mandi should be 80 square kilometer, 80 square kilometer as per the National Commission on Agriculture, as per the National Commission on Agriculture. ठीक है. So these were the challenges that were being borne by the farmers in the agricultural marketing. तो अब मुझे बताओ, will the farmers be able to earn that much income? They were like, okay, I was not able to sell it to the government under the MSP, but I thought of selling it to the government, to the market, and I would get good price. But actually it is not. Because of that, the farmer's income has not been good. Thereby the government came up with agricultural reform known as ENAM. ENAM बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं ज्यादा, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए. इट इज इलेक्ट्रॉनिक प्लस नेशनल agricultural market. So tell me, if the market become national, what is the advantage or what disadvantage it will be able to address? जो marketing के disadvantage थे, कौन कौन से address होंगे? Fragmentation. Now you see a person from state A will be able to sell a person who is belonging to state Y. Yes or no? So that is national. So that will lead to higher competitiveness or lower competitiveness. Now in that, tell me, will the cartelization, जो cartelization है, वो chances high है या low है? Low. Along with that, you see it's an electronic. Electronic means it's a transparent price discovery, जो opaque थी पहले. Apart from this, ENAM said that you don't need separate license to operate in different mandis. You only require one license which is valid across the state. One license. So isn't it then going to be useful for the trader? Because you are like one license. At the same time, ये जो requirement थी of physical possession of shops, that is also abolished. No more requirement. So it's considered a significant reform. Significant reform, क्योंकि इसमें काफी सारे challenges address हो गए. लेकिन अभी भी issue क्या था? नहीं, अवेयरनेस भी है बिल्कुल, लेकिन एक जो मेजर इशू मैं आपको बता रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल है, ये सब चैलेंजेस है. लेकिन व्हाट दिस एपीएमसी वाज नॉट एबल टू एड्रेस, दिस ENAM इज नथिंग बट it actually connected the various APMCs. Try to understand, it connected the various APMCs of different states in a single platform. तो बेसिकली आपको जैसे अब सामान अगर बेचना है, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ सेलर, क्लियर, ये एक प्लेटफॉर्म है ENAM जहां पे आपके प्राइजेस लगे हुए हैं, ये जो बायर है,
यहां पे ये जो ENAM है बेसिकली इट इज नथिंग बट इट कनेक्टेड और यू कैन से प्रोवाइडेड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एग्जिस्टिंग APMCs which connect the APMCs through this platform. तो सेलर को अभी भी यहां पे APMC के पास जाना पड़ता है, उसका जो प्राइस डला हुआ है ENAM प्लेटफॉर्म पे which can be bought. मार्केट तो बड़ी हो गई बट अगेन यू हैव टू गो टू दी APMC क्योंकि आपकी क्वालिटी कौन चेक करेगा कि आप जो माल दे रहे हो सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्लियर। उसके अलावा आपने जो क्वांटिटी कोट की है वो सही है नहीं है, तो उसको हम असेइंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग फैसिलिटीज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द APMC, क्लियर। ऑन द अदर हैंड सेम गोज विद द बायर ऑल्सो, ये जो प्रोड्यूस है दिस गो टू द APMC एंड देन गो टू द बायर। तो बायर ने अगर प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने प्राइस कोट किया, सेलर accepted the price, then what will happen? The money will come here, the goods will flow here. But these APMCs are responsible, this APMC is responsible for checking the quality and the amount and all that, कि ये जो सेलर ने कोट किया वो ऐसे ही तो नहीं झूठ कोट किया। अब इशू इसमें देखो मैंने क्या बताया, ये जो है दिस ENAM is just connecting the APMC। यार अगर मेरे को टाई अप करना है डायरेक्ट MNC के साथ, व्हाट अबाउट दैट विच वी कॉमनली कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो तो इसने किया ही नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, इन शॉर्ट दिस ENAM is also restricting the agricultural marketing that is within the government zone only. It's kind of government zone only. What about alternative marketing channels? What about alternate marketing channels? What is this alternate marketing I am talking about? Like contract farming or private market or direct farmer to consumer market. Why this market is only restricted to the government? Why only government is taking care of it? And actually let me tell you there is a conflict of interest. क्यों? देखो जो APMC है वो मार्केट है, इट्स अ मार्केट, तो मार्केट में भैया उनका काम क्या है कि मार्केट को डेवलप करो, बट APMC इज ऑल्सो अ रेगुलेटर ऑफ दैट मार्केट, उस मार्केट की रेगुलेटर भी है, दैट मीन्स एंश्योरिंग द फेयर प्रैक्टिसेस हैपन। तो अब आप देखो एक तरफ आपका रोल है कि मार्केट ग्रो करे, दूसरी तरफ आपको यह देखना है कि प्रैक्टिसेस रीजनेबल हो। तो आप कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होगा इन दोनों फंक्शंस में, तो लेकिन आप किसको ज्यादा देते हो? मार्केट ग्रोथ में, क्योंकि आपको भी पैसा आता है उससे, तो आप रेगुलेशन उसकी प्रैक्टिसेस को भूल जाते हो। तो एक्चुअली है भी कॉन्फ्लिक्ट, और इसको आप ये बोल सकते हो इट्स अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट इन द एग्रीकल्चर मार्केट, इट्स मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। वाई नॉट लिबरलाइज? क्यों नहीं आप लिबरलाइज कर रहे हो? वेयर यू आर अलाउइंग अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट मार्केट। यार प्राइवेट मार्केट बनने दो ना, लेट देम प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, गिव फार्मर्स अ चॉइस वेदर टू गो टू द APMC और गो टू द प्राइवेट मार्केट। तो ये जो फार्म लॉ नहीं आया था, उसका एक लॉ का पार्ट ये था लिबरलाइजेशन ऑफ मंडी सिस्टम। Liberalization of mandi system means that farmers should be able to sell their produce outside the mandi. It's not necessary that farmer have to sell their produce only to the mandi, APMC. They can sell their produce, which means the private markets will mushroom. और private market mushroom होगी तो शायद farmers से थोड़ा सा चार्ज ले ज्यादा, but they will provide the cold storage infrastructure, good infrastructure which is required by the farmers. For that they might take some amount extra charges up to them. This is their option. जैसे गवर्नमेंट स्कूल से और पब्लिक लाइक प्राइवेट स्कूल से, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल से, लेट देम डिसाइड। तो व्हाई नॉट यू आर लिबरलाइजिंग द मंडी? तो गवर्नमेंट वेंट फॉर दिस। एक वन ऑफ द फार्म लॉ वाज अबाउट लिबरलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग which is just restricted to government as of now, government regulated. Clear? तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इस पे ENAM के बारे में, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं।
चलो, चैलेंजेस तो अपने क्लियर ही हैं. ईनैम के बारे में लिख लो. इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which seeks to connect the existing mandis, at the national level. Next point, eNAM is envisaged as Pan India electronic trading portal. eNAM is envisaged as ENVISAGED as Pan India electronic trading portal. Pan India electronic trading portal which seeks to connect the existing APMCs to create a unified national market for agricultural commodities. Next point, NAM will create a national network of physical mandis. Which can be accessed online. Next point, it seeks to leverage the physical infrastructure of the mandis through an online trading portal enabling buyers situated even outside the state to participate in trading at the local level. Next point, the central government fully funds eNAM. Which is implemented by small farmers agribusiness consortium. The central government fully funds eNAM, which is implemented by स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हेडिंग डालना छोटी सी. देखो फार्मर्स को क्या है ना, मैंने आपको क्या बताया, लीड करने के लिए तो कुछ ही लोग चाहिए होते हैं, कुछ ही क्या, 2-3 ही. और जनरली लीड करने वाले वो लोग होते हैं जो आराम से 2-3 साल भी खा सकते हैं अगर कुछ रुपए भी नहीं आए तो. और उनको पॉलिटिक्स में भी आना होता है. सबका देखो अल्टीरियर मोटिव होता है, और अल्टीरियर मोटिव को ना पूरा करने के लिए एक भीड़ बनाई जाती है ना, चाहे कहीं पे भी हो. चाहे मैं आपको देखो यहाँ पे ना बोलूंगा नहीं, जैसे इवन हियर ऑल्सो
यहां पे भी कुछ लोग जैसे ना लीड करते हैं, चाहे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए या प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, सीसैट के लिए, और आप उस भीड़ का पार्ट बनते हो। आपके लिए कुछ होता नहीं है, आपका तो टाइम चला जाता है। अब आपका तो टाइम चला जाता है, लेकिन उनका क्या होता है, वो लोग मिल लेते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, उनके तो अटेम्प्ट ओवर हो चुके होते हैं, बट दे से दैट दे आर डूइंग बेनिफिट फॉर यू, है ना। इसी तरीके से और अच्छे से बोलते हैं, मेरे जैसे नहीं, और अच्छे से आपको पूरा सीख के आते हैं सब मैनिपुलेशन, ठीक है। और इस मैनिपुलेशन में सबसे पहले वो कुछ ना कुछ इमोशन पे टारगेट मारते हैं, और है तो सबका इमोशन है यार कि सीसैट ने बिल्कुल ले रहा अटेम्प्ट टाइप से, तो बस उसके बाद वो फिर फोटोज डालेंगे कि चलो इन मंत्री से मिले, कपिल सिब्बल से मिले, इस टाइप से, और उनका तो हो गया कनेक्ट, और उनके लिए आप भीड़ थे, बस आप अपना फिर अटेम्प्ट दोगे, वही चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब ये जो फार्मर्स है, फार्मर्स को उनको नहीं पता कि क्या वो अपोज कर रहे हैं। किसी को तो बिल में, मैं बोल रहा हूँ आई थिंक 90% फार्मर्स को तो पता भी नहीं होगा। नहीं, बिल तो है, वो सब अपने को क्यों करना है जो रिपील हो गई है। कोई वो पुरानी कहानी को रिपील करने से अपना कोई फायदा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है ना। आई पर्सनली फाइंड द फर्स्ट बिल, लिबरलाइजेशन बिल, एज अ नाइस बिल, बट उस देखो प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म उससे, बट वो चलते चलते वो प्रोटेस्ट का एजेंडा कहां चला गया, एमएसपी। स्टार्ट वहां से नहीं हुई थी, स्टार्ट तो अगेंस्ट द बिल से हुई थी, लेकिन जब सबको पता था कि लिबरलाइजेशन ऑफ मंडी सिस्टम इज नॉट अ बैड थिंग, बस इसमें कंसर्न था, विच आई वुड से यस, मतलब बिल्कुल एक करेक्ट एप्रीहेंशन हो सकता है। कंसर्न ये था कि सपोज करो गवर्नमेंट ने प्राइवेट मार्केट ले आई, एक ही आ गई। अब उनका कंसर्न सिर्फ एक मेजर, जो आई थिंक शायद वो राइट भी थे उसमें, कि अब आप गवर्नमेंट तो छोड़ देगी, गवर्नमेंट बोल देगी हम नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं, यू सेल इट ईदर टू द एपीएमसी और टू द प्राइवेट मार्केट, आई विल नॉट बी बाइंग इट, क्योंकि एमएसपी स्टैट्यूटरी मैंडेट तो है नहीं, गवर्नमेंट कई बार हटा भी सकती थी। तो उनका यह था कि इस एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए आप हम पे स्टैट्यूटरी लाओ, क्योंकि जैसे ही प्राइवेट मार्केट आ गई उनको तो चाहिए ना, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस, तभी वो सेल करेंगे बड़े बड़े एमएनसीज को, यस और नो। लेकिन उनको आप बेचोगे कब? उनको बेचने के लिए आप, गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट को तो हटना पड़ेगा ना बायर से, गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट बायर, सो देयर कंसर्न वाज कि गवर्नमेंट माइट शिफ्ट और यू कैन से रिड्यूस एमएसपी आफ्टर 2 years 3 years 4 years, और आप हमें छोड़ दोगे इन मार्केट्स के भरोसे पे। उनका यह कंसर्न था, और इस एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए धीरे धीरे उनकी डिमांड हो गई स्टैट्यूटरी डिमांड। अब पता नहीं कि क्या होता, जिस तरीके से गवर्नमेंट चल भी रही तो वो शायद डीरेगुलेशन की तरफ जा भी रहे, शायद एमएसपी रिड्यूस भी होता, क्योंकि एमएसपी इज कॉस्टिंग ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, जो वेस्टेज भी हो रहा है काफी जिसमें से। तो ये उनके कंसर्न को सिर्फ रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कहा, मैं और बर्डन क्यों ले लूं, मैं रिड्यूस तो करने की जगह बर्डन और हो जाएगा स्टैट्यूटरी। तो गवर्नमेंट वाज आल्सो लाइक वेरी रिजिड एट दैट टाइम, द फार्मर्स वर आल्सो रिजिड एट दैट टाइम, एंड आई थिंक उस वजह से वो बिल्स को कोलैप्स कर दी गई। एक बिल जो ये थी, दूसरी फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, तीसरी एसेंशियल कमोडिटीज। लेकिन उस बिल के बारे में अब अपने को कहानी ऐसे को नहीं ना कि बिल का ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि उस बिल का क्या क्रिटिसिज्म है, आपको सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि वो कहानी क्यों, मतलब वो स्टोरी क्यों स्टार्ट हुई, आइडिया लाइन क्या थी, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट, यहां से। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन, सो इट वाज लाइक प्रमोटिंग द अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग आल्सो, अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, जिसमें एक आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए आई आपकी दूसरी बिल, सेकंड बिल। पहली बिल लिबरलाइजेशन, अलाउइंग दी अदर सेक्टर्स ऑल्सो, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए आपकी आई दूसरी बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी कैसे होती है, लेट अस सी दैट राइट नाउ। होती क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सी यू हैव अ फार्मर, सपोज यू आर अ फार्मर, एंड देन वन इज अ बायर, ठीक है। एक फार्मर है हु इज अ सेलर। फार्मर को क्या चाहिए, देखो फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर के 3 रिस्क आपको मैं पढ़ा चुका हूं। पहला रिस्क यील्ड, ठीक है, सेकंड रिस्क मार्केट रिस्क, थर्ड इज नेचर। फार्मर वांट्स कि मेरे ये रिड्यूस तीनों से तीनों जो रिस्क है कम से कम हो ही नहीं हो।
और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल दीज थ्री रिस्क. हाउ? Farmer says that if I am cultivating what I need, I should get the timely application of input. That will reduce my yield or not. At the same time, if I am produced, I am sure of कि my product will be sold at this price. Apart from MSP, what other option? I'll talk about contract farming. And third, I should be adopting technology in my program, technology in my farm, so that it can reduce the nature risk also to a certain extent. On the other hand, एक और ऐसे persons बैठे हैं जिसको हम buyer बोल देते हैं, who are like running big businesses, crores of businesses. अब उस करोड़ के लिए लेकिन वो dependent है किसी raw material पे. क्या dependent on raw material? जिसको आप बोलते हो जैसे ना आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसको आप बोलते हो, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. These industries are dependent on the raw material which comes from the agriculture. Now, if they don't get the raw material, see there is a demand already, उनकी demand है goods की, लेकिन अगर आपको raw material consistently नहीं मिल रहा है, आपका business hamper हो जाएगा, और वो demand शायद आपके substitute के पास चली जाए. Yes or no? आपके substitute के पास चली जाए. अब बताओ कभी प्राइस अंकल चिप से लेस पे शिफ्ट हुई, लेस से अब 2M पे हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये तो देखो ये जो फूड इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव, मैंने आपको बताया था वाला श्रिंक इन्फ्लेशन पढ़ते समय भी. तो बेसिकली दिस फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज, और फूड इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं पैकेज फूड, दे नीड एग्रीकल्चर एज अ रॉ मटेरियल. अब उसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंट सप्लाई. तो यहां पे दोनों की नीड्स मीट होती हैं, दैट इज बायर एंड द फार्मर, एंड देयरबाय दे एंगेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट. Here they engage in a contract where the seller, if I talk about, the seller could be a farmer, group of farmers, or some organization which we call it as farmer producer organization. Nothing again, group of farmer producers. They are like engaged in a contract where buyer would provide quality inputs, so quality inputs when they provide, such as seeds, fertilizers, pesticides, or credit if they require. Now based on this, the seller will provide the desired produce, and I would say this desired produce will be provided to them on a consistent basis, creating a consistent supply. On the other hand, produce free में तो दोगे नहीं, produce के बाद आपको क्या देना होगा उनको? Payment. Yes or no? Again, this payment is predefined, that how much we have to give. This is a predefined payment. Clear? तो अब देखो फार्मर के रिस्क रिड्यूस हो गए नहीं हो गए? फार्मर का जो बायर the seller is getting the quality inputs, reducing the yield risk, because this will result in timely application of input, and that to the quality one. At the same time, farmer is getting a predefined payment of against their produce. कितना प्रोड्यूस लोगे तो उसको आपको इतना पेमेंट मिलेगा. सो उसको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ अपनी लेबर यूज करनी है ना. मार्केट रिस्क भी रिड्यूस्ड, एंड इफ दे कैन इनकॉर्पोरेट सम टेक्नोलॉजी इन देयर फील्ड ऑल्सो. गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आप ये देखो, दिस इज नोन एज लाइक रिड्यूसिंग द रिस्क. ऑन द अदर हैंड, द बायर gets a consistent supply of raw material, not just consistent but the supply of raw material which they want, of which quality they want. जिस quality का चाहिए they will get it. This is known as contract farming. अब इसमें कोई बुरी चीज दिख रही है क्या? सर जिस टाइम वो सेल करेगा उस टाइम अगर प्राइसेस चेंज हो. यस, देखो अब ह्यूमन नेचर है, चाहे वो फार्मर का हो चाहे वो एमएनसी का हो. ह्यूमन नेचर का क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट, एवरीवन लुक्स फॉर देयर ओन प्रॉफिट, है ना.
मैंने आपको आगे भी पहले भी एक कहानी बताई थी कि कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी होती है, दैट डजंट मीन दैट दे आर डूइंग इट फॉर अदर सेक, दे आर डूइंग फॉर देयर ओन सेक बिकॉज इट गिव्स देम सेल्फ सेटिस्फैक्शन. सो टू get that value, to get that feeling, you are doing the altruistic, you are not doing it for yourself, others person. That is wrong to say. आपको वो फीलिंग चाहिए इसीलिए कर रहे हो. अब सेम हियर, यहां पे जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट आता है, मार्केट प्राइस तो कीप ऑन चेंजिंग, मार्केट प्राइस तो बदलता रहेगा. अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया पहले ही कि इस प्रोड्यूस का ये प्राइस मिलेगा, इस प्रोड्यूस का द बायर विल पे दिस मच प्राइस. Clear? Now the two things can happen. Market price of their produce, if it goes higher, market price of the produce if it goes higher, the farmers sometimes sell the produce to the other party. Why? Again, they want to seek higher profit. Sometimes the market price, if it goes to the lower than the decided price, than the predefined price, these party reduces the buying from this particular party, reduces to buy or goes away from this contract. They will buy from the market itself because they are getting it at a lesser price, again to maximize their profit. So this contract farming has this major issue. Looks to be good, everything goes well, it helps in technology improvement. Actually हुआ भी है, काफी इंडस्ट्रीज ने तो बड़े बड़े प्लांट्स बनाए हैं फार्मर्स के लिए. बट अगेन दिस ऑलवेज विल बी अ डिस्प्यूटेड एरिया, और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अभी तक कोई ऐसे अच्छे मैकेनिज्म्स नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैव बीन एक्सेप्टेड इन वेरियस स्टेट्स. अगेन मैंने आपको क्यों बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्सेप्ट करने के लिए अगेन स्टेट लॉज में करोगे. सो इट हैव बीन एक्सेप्टेड इन वेरियस स्टेट, but subject to disputes, because of which यहां पे इसकी लिमिटेशन आती है. इसको एड्रेस करने के लिए द गवर्नमेंट वाज ब्रिंगिंग दैट बिल और एक्ट, आई वुड से, कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, एक अच्छा सा डिस्प्यूट मैकेनिज्म बनाया जाए, वेयर बोथ पार्टीज कैन हैव अ डिसेंट लाइक से टू दैट. लेकिन वो चीज फिर खत्म हो गई. ठीक है, और ये तो देखो एक सिंपल कंसेप्ट है. आज ये देखो छोटी सी चीज है, लेकिन आप ऑब्जर्व करते होगे कभी कभार, जैसे आप ना, अब आप लोग के पास कैब करने के 3-4 ऑप्शन है. इन ड्राइव भी है, ओला भी है, उबर भी है, इसके अलावा आपके पहले तो मेरू भी हुआ करते थे, है ना. तो ये सब आपके पास है. अब आप क्या करते हो, कई बार आप 2-3 कर लेते हो, तो किसी कोई बंदा सामने घर के ऑलमोस्ट आ भी गया, उसको कैंसिल नहीं कर देते हो. ऑन द अदर हैंड कई बार वो आपकी कैंसिल करता है ना, कैब्स. So what happened? This is why this is happening. मार्केट है, उनके पास भी बायर है और हमारे पास भी, मतलब खरीदने के लिए और भी सेलर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स और भी हैं कि भाई अब वहां से भी कैब कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग इन द मार्केट. ये बिल्कुल एकदम बाउंड टू, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट पे चले जाओगे कि मेरी कैसे कैब कैंसिल कर दी, है ना. तो ये चीज एक मार्केट में सेम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आई टोल्ड यू दिस इज एन ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल विच इज एक्चुअली अ प्रॉपर मार्केट अगेन ना. तो आपकी जो नेगोशिएशंस है, आप बस ये इंश्योर करो कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट बंधा रहे, ठीक है. एंड इन दैट यू विल विन सम, यू विल लूज सम. कभी भी किसी के साथ अगर आप जुड़ते हो, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ना, एग्रीमेंट में, देयर इज नेवर अ सिचुएशन व्हेन इट इज विन विन, लाइक कंप्लीट विन. सॉरी, इट्स नॉट लाइक कंप्लीट विन और कंप्लीट विन फॉर देम. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग सो दैट ही विन्स एंड द एग्रीमेंट बिकम विन विन. दिस इज हाउ इट हैपेंस. अगर डिस्प्यूट फ्री चलना है तो. डिस्प्यूट होते ही तो फिर कहानी बस डिस्प्यूट्स की चलती रहती है. तो बस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्विकली लिख लो, यू जस्ट मेक दिस डायग्राम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड देन राइट इट डाउन. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन based on pre-harvest agreement between the buyers in bracket food processing industries, comma agricultural exporters etc. and
the sellers, bracket close, and the sellers in bracket farmers, farmer producer organization, etc. etc. ठीक है. नेक्स्ट यहां पे लिखना कि सेलर, हाउ सेलर बेनिफिट, यहां पे नीचे पॉइंट लिखना इस सेलर के, रिड्यूसिंग मार्केट और प्राइस रिस्क, बेनिफिट टू द सेलर फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, रिड्यूसिंग मार्केट स्लैश प्राइस रिस्क. सेकेंड, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट डिमांड, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट डिमांड. थर्ड, क्वालिटी इनपुट, क्वालिटी इनपुट. फोर्थ, चीपर फॉर्मल क्रेडिट, फोर्थ चीपर फॉर्मल क्रेडिट. फिफ्थ, enhances private investment, especially the corporate, enhances private investment, especially the corporate investment. Next point, improved technological adoption, improved technological adoption, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन. ठीक है. ऑन द अदर हैंड बायर साइड में लिखना कंसिस्टेंट एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंसिस्टेंट एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स. सेकेंड, consistent and uninterrupted of supply of raw material. Second, prevented from market price fluctuation, prevented from market price fluctuation. Third, diversified supply base, diversified supply base. Now come outside of this to the point. हाँ, यस लिख सकते हो, लिख लो. फोर्थ, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट. ठीक है. नाउ कम आउटसाइड ऑफ दिस एंड write it down. In India, contract farming is regulated. In India, contract farming is regulated under the Indian Contract Act, under the Indian Contract Act 1872. Next point, since agriculture is a state subject, since agriculture is a state subject, the contract farming is not uniform. The contract farming is not uniform. The contract farming is not uniform. Next point, the first widely acknowledged event of contract farming, the first widely acknowledged event of contract farming in the Indian context was, the entrance of Pepsi Food Limited, into Punjab in 1989, into Punjab in 1989. Continue, full stop. The company intended to specifically
the company intended to specifically focus on exporting the value of, we focus on exporting value added processed foods, value added processed food. This, full stop, this led to the birth of the PepsiCo's backward linkages. This led to the birth of PepsiCo's backward linkages with the farmers of Punjab. With the farmers of Punjab. Full stop. This model of contract farming led to an increase in productivity and the introduction of modern technology for the tomato crop. ठीक है? So that's it about the agriculture.